خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ کامیاب سفارتکاری کے بعد بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر تپاک استقبال۔ بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر جلسے سے خطاب میں کہا کہ دنیا بھر میں سندھ کے پانی کا دفاع کیا، بھارت نے سندھ کے پانی پر نظر ڈالی تو ایک اور جنگ لڑیں گے اور پھر اسے شکست دیں گے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بھارت نے یہ حملہ تو کر لیا ہے، مگر پاکستان کے یہ مقدمہ جو تگڑا مقدمہ ہے، ہم نے اقوام متحدہ میں آپ کا صندوق کا دفاع کیا، ہم نے امریکہ میں ان کے دارالحکومت میں آپ کا صندوق کا دفاع کیا، ہم نے برطانیہ میں، یورپ میں آپ کا صندوق میں دفاع کیا کہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے کہ اگر بھارت ہمارے صندوق کی طرف مالی آنکھ بھی دکھاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور جنگ لڑیں گے اور ایک بار پھر ان کو شکست دلوا۔ ملکی تاریخ کا پہلا واقعہ، سندھ میں انوکھی تاریخ رقم، عوام کے لیے گھنٹی لگائی، خود گورنر ہاؤس کی چابیاں لے کر غائب۔ قائم مقام گورنر نے محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے اجلاس بلایا، انتظامیہ نے قائم مقام گورنر کے لیے آفس نہ کھولا، اویس قادر شاہ کا شدید رد عمل، گورنر سندھ کے خلاف توہین کی تحریک لانے کا عندیہ۔ تفصیلات اقصی شاہد کی رپورٹ میں جانیے۔ عملہ سرکاری کاموں میں خلل ڈالنے لگا، قائم مقام گورنر سندھ کے اجلاس طلب کرنے پر آفس ہی نہ کھولا گیا، عملہ غائب، ایس ایم سمیت کوئی نظر نہ آیا، ہائی لیول اجلاس میں افسران بغیر بریفنگ روانہ ہو گئے، اویس قادر شاہ کو گورنر ہاؤس میں داخلہ کیوں نہ دیا، معاملہ سندھ اسمبلی میں بھی زیر بحث آیا، واقعہ پورے ہاؤس کی بے عزتی قرار، کامران ٹیسوری آئین پر عمل کریں، آغا سراج درانی کا مطالبہ، ادھر نثار کھوڑوں نے اسمبلی میں توہین کی تحریک لانے کا عندیہ دے دیا، گورنر ہاؤس عملے کی صورتحال سے بچ نکلنے کی کوشش، قائم مقام گورنر سندھ کی غلط فہمی کہہ کر بات ٹال دی، مقام گورنر اویس قادر شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح دفاتر بند کرنا عہدے سے مذاق ہے، یہ آئین کی تذلیل کرنا ہے۔ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، عوام کی پراپرٹی ہے، یہ یہاں پہ پبلک کی بھلائی کے لیے کام ہوتا ہے۔ اچھا یہ اس آفس میں کیا ایسا پڑا ہے؟ اب مجھے کوئی سمجھائے کہ ایسی کون سی ایسی قیمتی چیز پڑی ہے کہ وہ چابی بند کر کے اور جیب میں ڈال کے لے گئے۔ آئینی عہدہ رکھنے والا جب خود ہی آئین کی پاسداری نہیں کرے گا تو کیا میسج ہم کنوے کر رہے ہیں؟ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی عامر صدیقی اور جمال احمد نے کہا کہ گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ وہ بچے جو آئی ٹی کے کورسز کریں، یہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کراچی اور پورے سندھ کے اسکول اور کالج تباہ کیے، تو ان کا پلان یہ ہے کہ ہم گورنر ہاؤس پہ قبضہ کریں اور ان بچوں سے تعلیم چھینیں۔ کوئی بھی ایسا ایشو نہیں تھا، اسپیکر صاحب نے بے بنیاد وجہ بنائی ہے، صرف گورنر ہاؤس کو اور گورنر کے عہدے کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے۔ کیس ان کے خلاف بننا چاہیے کیونکہ انہوں نے گورنر ہاؤس کا جو گورنر صاحب کا جو عہدہ آئینی عہدہ ہے، انہوں نے اس کا مذاق بنایا ہے۔ یہ ہمارا گورنر ریڈ لائن ہے، اگر اس کے اوپر بات کرے گا تو بہت دور تک بات جائے گی۔ یہ جس طرح عوام کی خدمت کر رہا ہے، جس طرح وسائل نہیں ہونے کے باوجود عوام میں گھستا ہے، کام کرتا ہے، یہ ان کے اسکول دیکھیں نا، گھوست اسکول پڑھے ہوئے، وہ تو بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ ادھر کامران ٹیسوری نے نوٹس لے لیا، پرنسپل سیکریٹری سے انکوائری رپورٹ طلب کر لی گئی، کورٹ نے کہا کہ پرنسپل سیکریٹری قائم مقام گورنر کو رسائی سے نہ روکے۔ ادھر کامران ٹیسوری نے نوٹس لے لیا، پرنسپل سیکریٹری سے انکوائری رپورٹ طلب کر لی گئی۔ کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ اقصی شاہد، سٹی 21۔ عدالتی حکم پر ہاؤس کی چابیاں بھی مل گئی، دفاتر بھی کھل گئے، اویس قادر شاہ کو دفتر کھلوانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ عدالت کا پرنسپل سیکریٹری کو قائم مقام گورنر کو رسائی دینے کا حکم، رہائشی کمروں کے علاوہ دیگر دفاتر تک بھی رسائی دینے کی ہدایت، پرنسپل سیکریٹری سے 23 جون تک رپورٹ طلب، قائم مقام گورنر سندھ سے گورنر ہاؤس عملے کی ملاقات۔ اس موقع پر اویس قادر شاہ نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کہ پرنسپل سیکریٹری کہہ رہا ہے کہ گورنر صاحب ملک سے باہر گئے لیکن آفیسر کی چابی اپنی جیب میں ڈال کے لے گئے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہت چھوٹی سوچ ہے، اس کو کیا کہیں۔ سندھ اسمبلی بجٹ سیشن میں 5ویں روز بھی بحث، قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ کو گورنر ہاؤس میں اجلاس نہ کرنے دینے پر پیپلز پارٹی نے ایوان میں گورنر کامران ٹیسوری کے خلاف قرارداد لانے کی دھمکی دے دی۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں جانیے۔ کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس کی چابیاں کیوں اپنے ساتھ لے گئے؟ معاملہ سندھ اسمبلی پہنچ گیا، جیالوں نے قرارداد لانے کی بھی دھمکی دے دی۔ سندھ اسمبلی میں 5واں روز بجٹ پر بحث کے دوران
उस वक्त सूरत हाल तब्दील हो गई जब सिंध असेंबली के स्पीकर और कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह को गवर्नर हाउस में इजलास करने नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी के निसार अहमद खोड़ो और आगा सिराज दुरानी ने गवर्नर कामरान टिसोरी के खिलाफ करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। गवर्नर, according to this 104, he has the right, he has the authority from the Constitution of Pakistan 1973 to act as a governor, acting governor, and he has all the powers. सर जी, ये मुल्क पाकिस्तान है, चलता कॉन्स्टिट्यूशन पे है। ये सिंध भी सूबा पाकिस्तान का है, ये भी चलता कॉन्स्टिट्यूशन पर है, और ये असेंबली भी है जो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहती है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ अगर कोई बात आती है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर बनता है। वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार ने तहा अहमद की तकरीर के दौरान अदालती फैसला पढ़कर सुनाया और बताया कि गुज़िश्ता 22 दिनों से कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस नहीं छोड़ा जा रहा है। पिछले 22 दिन से जैसे ही वो एक्टिंग गवर्नर बने और वहाँ गए गवर्नर हाउस, तो उनको जाने नहीं दिया गया, कतई नहीं जाने दिया गया। ये मैटर जो है काफी बार हमारे दोस्तों ने भी पूछा है अपोजिशन। एमक्यूएम के रुकन तहा अहमद ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दिफा करते हुए कहा कि इतना बड़ा इशू नहीं था जिसको मसला बनाया गया। आप लोग ये देखें कि आप लोग जिस गवर्नर के लिए बात कर रहे हैं उसने तो पूरे पाकिस्तान के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए, तो हम कैसे एक ऐसे शख्स के लिए जो एक्टिंग गवर्नर है, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको कैसे रोक सकते हैं? गवर्नर साहब ने उस पर इंक्वायरी कमीशन भी बना दिया है और इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है, और उसकी जिस तरीके से कहा है कि जी ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको इस तरह से पोर्ट्रे ना किया जाए। सिंध असेंबली में 5वें रोज 16 अरकान के खिताब के साथ 122 अरकान बजट पर बहस कर चुके हैं। सूबाई वज़रा अली हसन जरदारी, मोहम्मद बख्श महर, मोहम्मद अली मलकानी, मखदूम महबूब जमा और दीगर ने अपने महकमों की कारकर्दगी बताई। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। मेयर और कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास आई चुंदरीगर रोड की मुकम्मल बहाली का मास्टर प्लान पेश किया गया है। इजलास में शहर की खूबसूरती और देखभाल के लिए मॉनिटरिंग कमेटियों के क़याम की भी सिफारिश की गई है। पार्किंग के मसाइल के हल के लिए बारादरी पार्किंग से आई चुंदरीगर रोड तक शटल बस सर्विस शुरू करने पर गौर किया गया। आई चुंदरीगर रोड की तज़ीन व आराइश के लिए मेयर कराची और कमिश्नर कराची एक पेज पर हैं। सड़क को बैनुल अक़वामी तर्ज का बनाने के लिए निजी और कारपोरेट शोबे को ताउन की दावत दी गई है। मंसूबे को तकनीकी बुनियादों पर मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए NED यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने तजावीज़ पेश की हैं। इजलास में CIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर KMC, डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी पाकिस्तान रेलवे और दीगर इदारे शरीक थे। कराची की 20 अहम शाहराहों पर कैब रिक्शे पर मुकम्मल पाबंदी। ट्रैफिक पुलिस ने भी डंडा उठा लिया। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने। ममनुआ रूट पर कोई रिक्शा आया तो सेक्शन अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाबंदी पर अमल दरामद के बाद यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। कमिश्नर कराची ने 2 महीने के लिए पाबंदी लगाई। ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल थे, चिंची वाले, ना तो ड्राइवरों के पास लाइसेंस है ना डॉक्यूमेंट्स हैं, और जहाँ से जिसको पैसेंजर को दूर से देखा और गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। गाड़ी पीछे वाला जो है वो कोच आ रही है, कार वाला आ रहा है, वो एक्सीडेंट का बहस बनते थे, और उसकी वजह से जो है जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ कमिश्नर कराची का, हमारे पीर मोहम्मद शाह साहब हैं DIG साहब ट्रैफिक, उन्होंने प्रेस रिलीज़ की। उसमें जो है बोला फौरी तौर पे पहली फुर्सत में ये कार्रवाई करो कि कोई रिक्शा जो है ना कराची यूनिवर्सिटी पर नहीं हो। शहरी कानून पर अमल करें वरना जेबें खाली हो जाएंगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब छोटे मोटे नहीं भारी जुर्माने और गाड़ियां भी जब्त होंगी। रॉन्ग वे साइड पर ड्राइविंग पर मोटरसाइकिल सवारों को 25,000 रुपये तक के चालान किए जाएंगे। मुबशर हुसैन की रिपोर्ट में जानिए। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए सख्त एक्शन का फैसला। अब छोटे मोटे नहीं भारी जुर्माने और गाड़ियां जब्त भी होंगी। रॉन्ग वे साइड पर ड्राइविंग पर मोटरसाइकिल सवारों को 25,000 चालान किए जाएंगे।
गाड़ी वालों को 2 लाख तक भरना पड़ेंगे। लाइसेंस न होने पर मोटरसाइकिल सवारों को 25, गाड़ी वालों को 50,000 का जुर्माना होगा। वन व्हीलिंग ड्रिफ्टिंग करने पर 1 लाख रुपए देना होंगे। साउथ समेत दीगर इजला में भी मुख्तलिफ स्पॉट्स पर कैमरे और टेक्निकल मशीनों की मदद से चालान किए जाएंगे। ये नंबर प्लेट जो आप देख रहे हैं, नंबर प्लेट शनाख्त नहीं होती मोटरसाइकिलों की, इनकी वाज़ेह तौर पे बड़ी नंबर प्लेट लगानी है और इनके इंडिकेटर, लाइसेंस, गाड़ी के पेपर और गाड़ी जो है इनके नाम अपनी जब तक नहीं होगी गाड़ी रिलीज नहीं होगी। दूसरी जानिब शहरियों ने जुर्माने की रकम बढ़ाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। शिकवा किया कि पहले ही अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, चालान की इतनी ज्यादा रकम कहां से देंगे। जो मैं बाइक चला रहा हूँ वो खुद 50,000 की नहीं है ना 25,000 की है। अब गवर्नमेंट इतना मुझ पे उधार मतलब मुझ पे लगा देगी, 25,000 जुर्माना लगा देगी, फिर तो मैं बाइक बेच दूंगा, यही कर सकता हूँ। फिर मुझे आना पड़ेगा अपने घर से कंपनी पैदल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो 1,000-1,200 रुपये कमाता होगा वो कैसे 25-30 हज़ार या 50,000 का कैसे चालान भरेगा। वो बात ये आवाम को भी थोड़ा ताउन करना चाहिए और हमारे जो बड़े हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इतना बड़ा जुर्माना कैसे गरीब बंदा मजदूर तबके का जो है वो कैसे भरेंगे। हुक्काम का कहना है कि अगर शहरियों ने क्रैकडाउन के बाद भी कानून की खिलाफ वर्जी की तो मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। कैमरामैन रमीश के साथ मुबश्शिर हुसैन से D21। पर अब आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची का बजट 24 जून को पेश किया जाएगा। बजट की तफसीलात से D21 ने हासिल कर ली। बजट में अखराजात का तखमीना 55 अरब 13 करोड़ 73 लाख 34 हज़ार लगाया गया है। बजट में डिस्ट्रिक्ट ADP स्कीमों के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट की मंजूरी राय शुमारी के जरिए ली जाएगी। गुज़श्ता बरस बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख 45 हज़ार रुपये का बजट पेश किया गया था। बजट में अखराजात का तखमीना 55 अरब 13 करोड़ 73 लाख 34 हज़ार लगाया गया। बजट में डिस्ट्रिक्ट ADP स्कीमों के लिए अरबों रुपए मुख्तस हैं। बजट इजलास से कबल मेयर कराची का अपोजिशन जमातों से रब्ता बल्दिया उज़्मा के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट से मुलाकात की, जिसमें बजट इजलास से मुतल्लिक़ अहम अमूर ज़ेर बहस आए। मेयर कराची ने अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा को सालाना बजट के आदाद व शुमार से आगाह किया। सैफुद्दीन एडवोकेट की जानिब से मेयर कराची को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल सैदी और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर करमुल्ला वकासी और दीगर मौजूद थे। दूसरी जानिब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दियाती नुमाइंदों को खबरदार कर दिया। उनका कहना था कि काम में गफलत बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। कराची की रोशनियाँ बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ी से तरक्याती काम जारी। मेयर कराची ने फ़कीर कॉलोनी, मुराद में मनकोट, कुरंगी और मलीर में जारी कामों की तस्वीर भी ट्वीट कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में सीमेंट एंड ब्लॉक की सड़कें बनाई जा रही हैं। मलीर में 150 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने का प्लान वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने खुशखबरी सुना दी। मलीर के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम। कहा, सोलर पार्क की ज़मीन पर रहाइश पजीर अफराद को सिंध हुकूमत ने बेसहारा नहीं छोड़ा। अवाम को साफ सुथरी और सस्ती बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। बताते चलें कि मलीर में 150 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने का प्लान वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने खुशखबरी सुना दी। मलीर के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम। कहा, सोलर पार्क की ज़मीन पर रिहाइश पजीर अफराद को सिंध हुकूमत ने बेसहारा नहीं छोड़ा। अवाम को साफ सुथरी और सस्ती बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। वज़ारत तवानाई सिंध के ऑफिस में चेक तकसीम करने की तकरीब। नाजरीन, बताते चलें कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के हवाले से तैयारियां तेज़। औरंगी और शाह फैसल टाउन चेयरमैन्स ने मुहर्रम के दौरान फराहमी और नकासी आब और सफाई सुथराई के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानिए। शहर के मुख्तलिफ टाउन्स ने मुहर्रम और हराम की तैयारियां तेज कर दी।
पानी की फराहमी सेवरेज के मसाइल के हल की भी हिदायत जारी। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया की जेर सदारत इजलास फराहमी और निकासी आब और बिजली की तवील लोड शेडिंग की शिकायत के अंबार लग गए। बुनियादी मसाइल के इलेक्ट्रिक एक्स्ट्रा लोड शेडिंग कर रही है, सेवरेज के मसाइल और पानी की लीकेज है, और इलाके में पानी भी नहीं आ रहा है। 3 महीना हो गए, बाज़ इलाकों में पानी नहीं पहुंचता है। अंदर में जो इमाम बारगाह मसाजिद हैं और इस हवाले से जो जुलूस निकलते हैं, उनके तमाम जिम्मेदारान यहाँ मौजूद थे, और इंशाअल्लाह ताला TMC के जो टाउन चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला जो माजी में काम रह गए थे उसको भी हम इस दफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। चेयरमैन जमील जिया और वाइस चेयरमैन अफान सगीर सिद्दीकी ने महकमा पानी और सफाई से मुतालबा किया है कि वो मुहर्रमुल हराम में पानी के नागे का दौरानिया कम करे ताकि अज़ादारान को अयाम अज़ा के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 7 दिन का था टर्नओवर वो किया जाए, और जैसे ये 24 का जो लाइन है हमारा जर्मन पंपिंग का, वहाँ पर जो 3 महीने 4 महीने होता है उसको भी जो है हफ्ता 10 दिन के अंदर किया जाए। और KE के हवाले से जो अभी मुहर्रमुल हराम में जो अभी मजालिस और जुलूस जो होते हैं उसमें जो है उनको जो है लोड शेडिंग ख़त्म करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने ये अहकाम जारी किए हैं कि आज़ादारान को बेहतरीन सहूलत फराम करनी है, और इसी सिलसिले में अभी हम इजलास से उठे हैं और हमने भी सारे मुंतज़मीन से मुलाकात की है, और इसके बाद हम एक विज़िट पे भी जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी हम बेहतरीन परफॉर्मेंस किए अपने। इधर टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शाह फैसल में मुहर्रमुल हराम के हवाले से अहम इजलास में इंतजामी और बल्दियाती अफसरान समेत इमाम बारगाहों और जुलूसों के मुंतज़मीन ने शिरकत की। टाउन चेयरमैन ने इमाम बारगाहों के अतराफ सिक्योरिटी के अलावा जुलूसों के रास्ते सफाई, रोशनी और निकासी आब के इंतजाम को बेहतर बनाने की यकीन दहानी करवाई। उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से हमारे साथ इंतज़ामिया और पूरे सिस्टम कोऑपरेट कर रहा है, और जो भी उनके मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह वो मुहर्रम से पहले हम हल कर देंगे, और हमारा उनका राब्ता चलता रहेगा। आपकी मौजूदगी में ये बातें हुई कि जिस तरह इंशाल्लाह पिछले साल इंतजाम हुए थे उससे अच्छे इंतजाम इस साल करके देंगे, चाहे वो सीवरेज के हवाले से हो, सफाई सुथराई के हवाले से हो, लाइटों के हवाले से, जितने भी काम हमारे से हो सकेंगे वो भी करेंगे, जो हमसे नहीं हो सकेंगे इदारों से भी करवा के देंगे और बेहतरीन काम करके देंगे इंशाल्लाह। दोनों टाउन्स के इजलास में के इलेक्ट्रिक महकमा पानी और सफाई और औरंगी टाउन के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की और अज़ादारान के बयान करदा मसाइल को हल करने की यकीन दी गई। DGISPR की सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा की जानिब से DGISPR का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। तलबा ने तर्जमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी से पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। DGISPR ने खिताब में कहा कि बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। आप लोगों ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता बनने का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर अफवाज हैं जो आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र का किरदार अदा करता रहेगा। अपना वतन और इसकी हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। तलबा ने DGISPR के साथ नशिस्त को सराहा। DGISPR का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के इंटरेक्शन हों। कोरोना के दौरान मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी बनने वाला शोबा ई कामर्स दबाव का शिकार। नई मालियाती पॉलिसियों और फाइनेंस बिल के बाद ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता लाखों अफराद बेयकीनी का शिकार हो गए। बजट में आए टैक्सों पर पाकिस्तान ई कामर्स और चेन स्टोर एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में जानिए। नई मालियाती पॉलिसियाँ और फाइनेंस बिल ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता लाखों अफराद बेयकीनी का शिकार। कराची प्रेस क्लब में चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं ने फाइनेंस बिल में मुजव्वज़ा टैक्स पॉलिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन असफन यार फारूक ने बताया कि ई कॉमर्स सेक्टर ने पिछले 5 सालों में 35% तरक्की की, लेकिन हुकूमत ने बड़े और छोटे सेलर्स को एक ही सफ में लाकर कारोबार की राह में रुकावट खड़ी कर दी है। FBR इक़दाम से छोटे सेलर्स मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मकसद ये नहीं कि टैक्स ना हो, टैक्स हो, लेकिन इसको आसान रखें, सिंपल रखिए ताकि इम्प्लीमेंट करना आसान हो, और फिर हर साल इसको बढ़ाते जाएं। एकदम से सारा बोझ डाल देंगे तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर होने जा रहा है, जो कि हम समझते हैं कि इसको बचाने की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान को
वज़ीर आज़म साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और FBR को ख़ास तौर पे इस पे नोटिस देना चाहिए। पाकिस्तान ई कॉमर्स के मेंबर मोहम्मद ईशान बोले, मुल्क में हर साल लाखों नौजवान ई कॉमर्स के ख्वाब लेकर मैदान में उतरते हैं। पिछले साल 25 लाख बच्चों ने ई कॉमर्स के कोर्सेज किए, लेकिन हुकूमत ने इन पर टैक्स की बौछार करके इनके ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। अगर ई कॉमर्स आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप जिस तरह के भी बताया कि जो कि हमारी सिंध गवर्नमेंट पंजाब प्रोफेशनल टैक्स है, उसकी मद में हम लोग मेटा मार्केटिंग की मद में हम दे रहे होते हैं 26%, कहीं पर 15% टैक्स, ये आप दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एंड यूज़र के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसका। फिर उसके बाद आ जाएँ, हमने वो प्रोडक्ट ली, प्रोडक्ट के ऊपर 18% दे रहे हैं टैक्स, ये नहीं कि नहीं दे रहे, 18 के अलावा ही 2% नया लग रहा है, 18% वो टैक्स हो गया। फिर आ जाए आप उसके बाद, अब हम पेमेंट, कस्टमर अगर पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर रहा है तो वो 2 से तकरीबन 2.5% ऐसे ही तकरीबन वो पे कर रहा है, ये आप पे कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे। पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन के मेंबरान ने खदशा जाहिर किया कि फाइनेंस बिल के बायस 1 जुलाई से छोटे कारोबार को गैर दस्तावेजी मईशत की जानिब धकेल सकती है। ई कॉमर्स को चलाने के लिए, उसको चलाने के लिए देयर इज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। सिमिलरली हम एक MDR चार्ज करते हैं पर ट्रांजैक्शन। अब इन जैसे लोग हमसे पूछते हैं कि जी आप हमें पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट बताएं, ओवरऑल इम्पैक्ट बताएंगे सारे टैक्सेस के साथ हमारी कॉस्ट कितनी पड़ेगी पर ट्रांजैक्शन। ये जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, अगेन हम में से कोई भी टैक्स के खिलाफ नहीं है, हम टैक्स के बेस नहीं है, लेकिन उसको एक ऑब्वियसली चैनलाइज करके हम चाहते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लोगों को गाइड करी जाएँ। तो अभी तो कुछ हमने इसमें एक्सप्लोर ही नहीं किया, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया, और ये ग्रोथ भी पिछले 2-3 सालों में इसलिए एक तो कोविड का इफेक्ट था, दूसरा मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस आए, वॉलेट्स आए, वो सारी चीज़ों ने इंकरेज किया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हुई थी बिजनेसेस की। इधर हुकूमती दावा है कि मईशत को दस्तावेजी शक्ल में लाना वक्त की अहम जरूरत है। ई कॉमर्स जो मुल्की माशी तरक्की में एक उभरता हुआ मौका है, आज एक नई आजमाइश से 2-4 है। कैमरामैन ताबिश के साथ बसीम इफ्तिखार, City 21।